ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਬਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। बिल्कुल। ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ करार दे रहे। ये जांच का पार्ट ने किया, ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी, तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर। देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने। एक गए की दे इशारे थे इन्हां दी, आप जी इन्हां दी तां वीडियो नहीं पाई। इन्हां नूं भेजिया किने? इन्हां नूं भेजिया भगवंत मान ने। कांग्रेस पार्टी डिमांड कर दी है कि मुख्यमंत्री साहब आपदे अहुदे तो अस्तीफा दें। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਅਤੇ 2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ CM ਮਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ करार दे रहे। ये जांच का पार्ट ने किया, ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਕਿਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੈਬ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। देखो, गुड़गांव पुलिस में शिकायत मिली थी जसवीर की। जसवीर ने शिकायत दर्ज कराई थी अपनी, तो इस शिकायत के संबंध में आगे गुड़गांव पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो उसमें 2 लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया जाएगा। उनको हमने हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडोक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। जो और
अंकित नाम का बंदा है। तो दूसरा हमारे पास इसको हमने दोनों को हिरासत में लिया है इसमें गुड़गांव पुलिस ने। अरुण नाम का बंदा। तो शिकायत इसमें कोई वीडियो वायरल थी जिसमें इनकी ये कोई इस पे उसमें इन्होंने फर्जी तौर पे कुछ बनाया है और उसको यूज कराया है इन्होंने, जो कि इनके पास कोई मान्यता प्राप्त लैब नहीं थी, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं थी। डिजिटल एक्सपर्ट हैं ये लोग। एक परिवार पहचान पत्र जो कि अरुण है, वो परिवार पहचान पत्र के उसमें पिछले 5 साल से जॉब कर रहा है पंचकुला में, जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है। तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। 10 लाख रुपए के लेन देन का भी मामला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ ये साफ हो पाया सर कि 10 लाख रुपए जो कि रिश्वत के तौर पर दिए गए थे, कैसे कहां से आया, कहां से, क्या कुछ उसका सोर्स था? देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी आएगी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इनसे पूछताछ करी जाएगी। सर कहां से हिरासत में लिया है सर? कहां की ये लैब है सर? देखो लैब अभी तो इनकी वैसे ही लैब है, कोई ऑथराइज लैब नहीं है वो गवर्नमेंट से। और गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है अभी, मतलब गिरफ्तार किया गया है इनको। तो उसमें ये जांच का विषय है, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आगे उसमें जांच करी जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है सर एफआईआर के अंदर, तो बड़े साहब कौन है? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ नहीं किया है सर? देखो बड़े साहब में अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ आएगी सामने, रिवील होगी तो उस पे भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। जिस वीडियो की बात चल रही है, सर्कुलेट करने की बात चल रही है, क्या वो वीडियो डीफेक था सर? अभी तक की जांच में निकल के आया सर? देखो अभी तो फोरेंसिक जांच का विषय है, वो वीडियो क्या थी, उसमें कौन कौन क्या कर रहे थे, तो जांच में जो भी सामने आएगा फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी राय ली जाएगी, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। शिकायतकर्ता ने दस्सिया कि ਉਸ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है और मैं फार्मेसी एक्सपर्ट हूँ। रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी। अब मुझे पंजाब पुलिस से खतरा महसूस होगा और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लगा। बात यूँ है कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, अननोन नंबर से था। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनदीप बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। कहते हैं जी एक रिपोर्ट बना दी है। तो मैंने कहा ठीक है आप भेजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, जिसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद ही आपको बात करें। कहते डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वीडियो है। वीडियो मैंने कौन सी वीडियो? कहते अभी जो बहुत वायरल हो रखी है जिसमें भगवंत मान वगैरह दिखाए गए हैं, वो उसके डीएलपी वगैरह का कोई ऐसा वीडियो था। तो मैंने कहा जी मैं तो डिजिटल ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं ऑडियो वीडियो के ऊपर रिपोर्ट नहीं दे सकता। तो उनका ये था कि कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी नॉन में होते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तुम किसी का वो दो, ठीक है, काम करना है अपने ये, ठीक है, और
अच्छी मात्रा में पैसे दें। मैं कहा जी चलो काम तो करने हैं, अब काम के लिए वो कर रहे थे, तो कई दूसरे कॉन्टेक्ट में भी होते हैं। मैंने कहा जी चलो मेरे पास आए जो कॉन्टेक्ट में, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा आपसे और आप बात करेंगे। कहते हैं नहीं कुल नहीं बात किया। मैं चलो कोई बात नहीं, क्योंकि लिए बड़े अफसर थे, तो मैंने कहते चलो फिर सामान पैक करो और गुड़गांव आ जाओ, गुड़गांव में लैब से बनवाने के लिए जाऊँ। मैं उसी सामान पैक करा, गुड़गांव के लिए लेटर गया, फिर होटल क्राउन प्लाजा का गुड़गांव में। उसी टाइम एसपी जशनवीर पहुंचे, उसी टाइम ही मैं पहुंचा था। पहले रिसेप्शन पे मिले तो उन्होंने कहा कि चलो आगे में चलते हैं, मुझे बैठ के बात करते हैं। तो नंबर 3000 था उनका, तो उसमें 3000 दे, तो कहते ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है भगवान जी के फेवर में, और उसमें जो दूसरे वो लोग हैं उनके पास 2 रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट है AI जनरेटेड नहीं है। उन्होंने कहा सर ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं रिपोर्ट नहीं बना सकता। हाँ, जो भी इंसान है उसको आपको पेन ड्राइव वगैरह देनी पड़ेगी, वो देखेगा उस हिसाब से रिपोर्ट बनेगी। कहते चलो कोई बात नहीं, बड़े साहब बात करेंगे। मैंने कहा SP साहब से भी बड़े साहब कौन, तो फिर वो दूसरे रूम में लगे, वो 3004 रूम में लिखा है। तो वहां जाके उन्होंने लाया, ये बड़े साहब थे जो कि CP लुधियाना थे, स्वपन शर्मा वैसा ये नाम पर था। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करके रिपोर्ट बनानी है और जल्दी से जल्दी चाहिए। फिर मैंने समझा जी जो चीजें प्रोसेस में टाइम लगना है, पर पहले आप सैंपल भेजो, फिर इसके बाद ही वो होगा कि मतलब रिपोर्ट कैसा है। तो इन्होंने फिर पेन ड्राइव वगैरह प्रोवाइड करवा दी थी। फिर जब पेन ड्राइव प्रोवाइड करवा दी और उसके बाद अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए बुला लिया। तो ब्रेकफास्ट से पहले एक रिपोर्ट वगैरह दे दी थी रफ टाइप। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ओपिनियन जो थे 2 ओपिनियन थे, जिसमें फिर उन्होंने अमेंडमेंट करवाया। जैसे रिपोर्ट आई मेरे पास एक्सपर्ट की, मैंने आगे फॉरवर्ड करी। ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी किस तरीके से क्या चीजें पॉइंट होके क्या नहीं थी। तो जो SP साहब थे जशनवीर, उन्होंने फिर कुछ अमेंडमेंट्स करके रिपोर्ट में तो वापस भेजी कि इसको ये चीजें करवा दो, और वो चीजें आप मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी। फिर उसी बेसिस पे जैसा रिपोर्ट का फॉर्मेट बन के आ गए। तो ब्रेकफास्ट के टाइम फिर मैंने दूसरे इंसान का भी रेफरेंस दे दिया था, ठीक है, कि ये चीजें रिपोर्ट है और कि ये बना सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम फिर इन्होंने कोई उनके साथ में थे, तो उनको इन्होंने कहा कि इनको सामान दो। तो बाहर आया, तो बाहर आके इनोवा गाड़ी खड़ी हुई थी, किन्हीं की थी, सरकारी गाड़ी की। तो एक बंदे ने मुझे वहां पे 10 लाख रुपए अमन पैसे दिए, जिसमें सालों की फीस थी। ठीक है, एक्सपर्ट वगैरह की भी और मेरी भी। और उसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए ले लिए, काम मैंने ले लिए। और उसके बाद फिर इन्होंने पेन ड्राइव वगैरह पहुंचाई। फिर उधर से जो रिपोर्ट आई थी वो मेरे सेंटिव से जशनवीर को भेज दी थी। उसके बाद जो उन्होंने अमेंडमेंट की वो मुझे भेजी कि ये चीजें होनी है, मैंने फॉरवर्ड कर दी, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी और उस रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। और जो मेरे को वो था, जो रिपोर्ट्स बनी है जिस लैब की बनी है, वो दोनों ही लैब्स कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉरेंसिक लैब्स नहीं है जो कि एक किसी भी ओपिनियन दे सके ऑडियो या वीडियो के ऊपर। इवन तो जो एक्सपर्ट थे, हमने पहले कन्वे करा था कि जो एक्सपर्ट है वो साइबर सिक्योरिटी के हैं, ऑडियो वीडियो के डिजिटल के एक्सपर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने को सिर्फ दिखाना है कि आप पेपर रिपोर्ट दे दो, हम कोई पब्लिकली भी यूज कर रहे, कोई पॉलिटिकली यूज नहीं कर रहे, कोई पुलिस उसमें भी यूज नहीं कर रहे। तो हम ठीक है, जितना एनालिसिस था उन्होंने करके दे दिया। तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो रिपोर्ट उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर कि अगर मैं काफी टाइम से घबराया हुआ कि किस तरीके से ये चीजें रखूं और किसके सामने रखूं कि जो चीज हो रही है गलत हो रही है। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ SP ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਰਸਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਚੈਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ जनतक कर दी। कल से आप एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो श्री अकाल तख्त साहब के 5 सिंह साहिबानों के आदेश के बाद कि भगवंत मान को कोई सिख उसके साथ नाता नहीं रखेगा और उस सिख पंथ का दोषी और विरोधी बताकर अकाल तख्त साहिब से ये फरमान सुनाया गया। आज जो उसके बाद की घटनाक्रम घटे, जिस तरीके से सबसे पहले ये एक वीडियो आती है जिसमें भगवंत मान गुरु साहिबानों के पवित्र स्वरूप पर शराब के छींटे मार रहे हैं। ये बड़ा ही वीडियो आने के बाद पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ये सारा घटनाक्रम सामने आया, 5 जनवरी 2026 को अकाल तख्त ने भगवंत मान को बुलाकर मौका दिया कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई है। तब भगवंत मान ने साफ इनकार करते हुए कहा कि यह वीडियो एआई जनरेटेड है, यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है, यह वीडियो सच्ची नहीं है। अकाल तख्त ने उनको मौका दिया कि आप 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज जो भी आपको समझ में आती हैं उनके नाम हमें भिजवा दें, हम इस वीडियो की पूरी पड़ताल करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सिखों में मन में रोष है और बहुत पीड़ा है और दुनिया भर के सिख इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवंत मान जी ने इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की 2 लेबोरेटरी से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद यह कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि यह वीडियो भी असली है, कोई एआई जनरेटेड नहीं है। और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है, वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारे दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके विरुद्ध बजाय इसके कि अकाल तख्त साहिब के इस फरमान के लिए वो अपने पापों का पश्चाताप करते, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस पश्चाताप के लिए कोई बातचीत आगे करते, उन्होंने इसके विपरीत उनके एक मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने 18 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वीडियो नकली है, हमने 1191 फ्रेम का रेफरेंस करा लिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ये सब कुछ नकली है, ये वीडियो तो एआई वाली नहीं है, लेकिन ये जो बीच में भगवंत मान है और ये सब कुछ नकली है। जैसे ये घटनाक्रम की जानकारी मीडिया सत्रों में पहुंची तो तुरंत पंजाब की लीडरशिप पता करने लगी, तो पता चला कि स्वपन शर्मा जो कमिश्नर लुधियाना है वो गुड़गांव में घूम रहे थे कल। इसकी जानकारी जैसे ही पता चली तो खोज खबर शुरू हुई और संत में निकलते 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 सच क्या निकल के आया कि भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर गुड़गांव के एक हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। इस मीटिंग की पहले तो मैं आपको इस मीटिंग की वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं। आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो फोरेंसिक लोग रिपोर्टरी बता रहे थे, ये इन लोगों ने
आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोर पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी, माफ करना, ये कमिश्नर लुधियाना है और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह जो कि होटल के अंदर रुके थे और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह जिसने ये सारी डील कराई थी, ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और वो कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचा, उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान माल के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित जो दिल्ली से और अरुण पंचकूला से है, जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी, उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जल्दी भेजो, 2 लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना। आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। उन्होंने लिखा है, डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल। ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है, जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे, उनके माध्यम से इन्हों इस तरह कोट कर दो एंड देन डिनाई। इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है, और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्री अकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिसपे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख दुनिया भर के सिखों की मान, उनके भावना के अनुकूल, उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए, अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं, और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई। मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने, 1 मिनट का। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे को गुड़गांव बुलाया गया, व्हाट्सएप पे कॉल करके एसपी जशनदीप आए, उन्होंने मुझे कहा बड़े साहब से मिलवाना। बड़े साहब को मिलवाने के लिए होटल ले गए, हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। होटल ले गए, होटल के कमरे में ले गए। होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप, जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया।
अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं। 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 1191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है। और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें। और फिर सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ। अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है। क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके, रजिस्टर करके, क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस, अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं। ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है, और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया। सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे। जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। पर दूजे पासे मुख्य मंत्री भगवंत मान ने ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈਬ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤਹਿਤ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖੜਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ FIR ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅਸਲੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਨਕਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਟੋਭਿਆਂ ਛੱਪੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇਕੱਠ ਜਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ AI ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਆਮ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਈਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ। 5 ਸਾਲ ਉਹ, 5 ਸਾਲ ਉਹ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ 2027 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਨ ਬੜੇ ਨੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਬਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह एसपी के साथ मिलकर हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी। रिसेंटली मैंने किसी सरकारी अफसर की मदद करी थी, तो अब मुझे पता लगा कि उन्होंने तो वो उस चीज में यूज कर ली, हमारा फायदा उठा के, गलत फायदा उठा के। अब मुझे लग रहा है डर। देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे। कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने। ਇਹ ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ अहदे तो इस्तीफा दें। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो।